Hello students. Today we have to begin with session 16. We have done 15 sessions so far. Let's begin with this session and try to find out what more new words we can learn. What it is talking about, this new session. It says of time and place, the words related to time and place. Now let's understand time. When a chronic liar, we have read about this, a chronic liar lies constantly again and again and again. A chronic invalid means I've written there down, you can see a person made weak or disabled by illness or injury. Very weak को बोलते हैं invalid, किसी को बहुत ज़्यादा high level का अस्थमा हो जाए या TB हो जाए तो invalid क्या देते हैं. So he says a chronic liar lies constantly again and again and again. A chronic invalid is ill time after time, frequently, repeatedly. The derivation of the word is Greek chronos. This word chronos is indicating to time, you can understand here. Chronos is time. The noun form of this is chronicity. You can very well understand. ये सब हमने noun और adjective बनाना काफी सीखा है during the process. Now, an anachronism, very good word. An anachronism is someone or something out of time. Now when you say the word anachronism, now you can see the word an or chron. So when we have the word an before anything, you can understand this. He says is someone or something out of time, out of date, belonging to a different era, either earlier or later. Belonging to a different era. Era I have written a long and distinct period of history. Era होता है. कौन सा era? Not this era. Era is of the Gandhi. Era is of the Rama. Era is of the Mauryas and the Chandraguptas and certain. उनका era एक पूरा एक duration kind of thing. So era is that only. Either earlier or later भी हो सकता है. Now the prefix ana like a is negative. जब भी आपको पता है मैंने कितनी बारी बोला कि an आ जाए या a आ जाए तो नेगेटिव हो जाता है. तो यहाँ पर ana आपका आ गया और cron आ गया. Cron हमने यहाँ पर देख ही लिया था कि cron is basically denoting time था. तो यानी anachronism मतलब anachronism यानी anchron मतलब time के साथ ना होना. You can very well understand. The adjective is anachronous or anachronistic हो जाएगा. तो something out of time होता है, out of date, belonging to a different era होता है. Now you must have seen, anyway explanation he is giving you ahead. Let's understand that. Read a novel in which a scene is supposedly taking place in the 19th century and imagine one of the characters turning on a TV set. Anachronism. अब भाई आप कोई ऐसा मूवी सीन देखें जिसमें 1800 की बात हो. आपने मूवी देखी थी रुस्तम, एक मूवी आई थी. यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी. ठीक है, अक्षय कुमार की. उसमें वट एवर द मूवी सीन्स वर शोन ऑफ द अर्लियर, द ब्रिटिश एरा से भी पहले वाला, मतलब 1900 के एरा की बात होती. सब वही गाड़ियां, वही ड्रेसेस, वही सब स्टाइल. तो नाउ व्हेन वी सी द मूवी, यू आर सिटिंग इन 2021. When we see the movie, we are already 150 year in that session. तो अब हमारी सोच जो है बिल्कुल आज के टाइम से नहीं चलती, हमारी सोच उसी टाइम से चलने लगती है. वो एनाक्रोनिज्म हो जाता है. या कोई आप साइंस फिक्शन देखिए, सपोज साइंस फिक्शन देखिए, वो बताता है जी अब जैसे 2021 चल रहा है, वो बताया जी कि 3050 में क्या होगा. 3050 में भगवान जाने फ्लाइंग कार्स आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. लेकिन हाँ, these movie makers, they think of it and then they make a movie. So that is again anachronism होता है, यानी which is not with time. That's what the anachronism is. Okay, your friend talks, thinks, dresses and acts as if he were living in the time of Shakespeare. Another anachronism. Shakespeare तो भाई 600 years ago. अब उस टाइम के हिसाब से उसकी सोच, बातचीत करने का तरीका, कपड़े वपड़े वो सब हो गए, तो वो क्या होगा? अब anachronism होगा. Now I mark this line as if he were living. No, you know, I have been telling my students during grammar sessions that whenever we find if or as if in a given sentence, we consider this is unreal past tense. And to show unreal past tense, we use were. चाहे फिर वो ही क्यों ना हो, चाहे आई क्यों ना हो, या दे क्यों ना हो, she क्यों ना हो. As if
ही वर काइंड ऑफ थिंग, तो एज इफ ही वर लिविंग आना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये वर्ग का लॉजिक क्या है? वर्ग का लॉजिक क्या है? जब आप एजम्पशन होती है तो अब आप अनरियल पास्ट टेंस कंसिडर करते हैं, तो उस केस में आपको ऐसे ही लगाना होता है एजम्पशन को इंडिकेट करने के लिए। व्हेन यू वर इन स्कूल हमने आपको एक्सटम्पर कराया था, याद है? एक्सटम्परे वी वर डूइंग, जिसको आप लोग एक्सटम्पोर बोलते हो, या जिसको हमने एक वर्ड और भी बोला है अगर आपको याद है, इम्प्रॉम्प्टू होता है, याद है आपको? PROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू होता है। एक्सटम्परे और इम्प्रॉम्प्टू में कई बार जब स्कूल में थे, स्टेज पर टीचर ने कहा कि बोलकर दिखाइए ऑन द स्पॉट, आपने बोला इफ आई वर ए किंग, इफ आई वर ए बर्ड, तो क्यों बोला वर? बिकॉज वहां पर एजम्पशन की बात हो रही थी, तो वी से लाइक दिस, वर आ जाता है। ओके, लेट्स गो अहेड नाउ। Science fiction is deliberately anachronous. I was just telling you a while ago. It deals with phenomena, gadgetry, accomplishment far off, possibly in the future. Normally, future की बात करते हैं. That is what we call science fiction में ऐसा होता है, ठीक है? An anachronism is out of time, sometimes something out of place, is incongruous. Incongruous का मतलब not in keeping with the surrounding or other elements, out of place होता है। congruent एंगल आपने पढ़ा है ना ज्योमेट्री के अंदर, तो वो क्या होता है? सिमिलर जैसे होते हैं ना, जितना उसका एंगल होता है ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, प्रोपोर्शनेटली यू कैन से। तो कॉन्ग्रेटी का मतलब क्या हो गया? सिमिलरिटी काइंड ऑफ हो गया। लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो नेचुरली आउट ऑफ प्लेस हो गया, दैट्स व्हाट वी सेइंग। तो इनकॉन्ग्रुअस क्या हो गया? तो एनाक्रोनिज्म इज आउट ऑफ टाइम, समथिंग आउट ऑफ प्लेस इज इनकॉन्ग्रुअस, a word combining the negative prefix in, the prefix con का मतलब होता है with और together। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकॉन्ग्रुअस में क्या आया? इन भी नेगेटिव होता है, इनसेंसिटिव आपको याद है, इनअप्रोप्रिएट याद है, इनएक्टिव याद है, इन हो गया। कॉन मतलब विद होता है, ठीक है? और फिर व्हाट इज सेइंग विद द वर्ड कॉन का मतलब विद और टुगेदर होता है, एंड लैटिन वर्ड मींस अग्री इज कॉरस्पॉन्ड होता है। तो ये वर्ड जो है हमने इनकॉन्ग्रुअस बना दिया, यानी जो अग्री नहीं करता उसके जैसा नहीं होता, इनकॉन्ग्रुअस होता है। ओके, नाउ दस इट इज इनकॉन्ग्रुअस टू वियर अ स्वेटर एंड स्लैक्स टू फॉर्मल वेडिंग। ऑब्वियसली जब हम मैरिजेस में जाते हैं तो नॉर्मली we men wear suits and tie and all those things. Women wear normally saris in India or maybe gowns somewhere in those parties. Okay, तो this is the formal wedding में आप स्वेटर और स्लैक्स नहीं पहन सकते जो आप कॉलेज में पहन जाते हैं। It is anachronous to wear the wasp waist. You can understand this wasp waist. आपने कोई पुरानी मूवी देखी होगी तो उस वक्त ये लड़कियों की इस तरीके की जो ड्रेस होती थी, वास्प वेस्ट होती थी, इस तरीके से। यू कैन अंडरस्टैंड, इतना ज्यादा टाइट फिटेड काइंड ऑफ थिंग वास्प वेस्ट होती थी। इंडिया में तो नहीं चलती बट इंटरनेशनली काफी लोग पहनते थे ऐसे। अब इतना कल्चर में नहीं है बट पीपल वियर काइंड ऑफ थिंग। अगर देखेंगे 150 ईयर अगो पीपल यू फाइंड वास्प वेस्ट हो जाता है। तो क्या कह रहा है? द नाउन फॉर द फॉर्म ऑफ इनकॉन्ग्रुअस इज सॉरी इट इज एनाक्रोनस टू वियर द वास्प वेस्ट। यू कैन अंडरस्टैंड, यानी ऐसी शादियों में आप नहीं पहन सकते। conspicuous bustle we say, conspicuous bustle होता है। conspicuous bustle you can very well understand, अगर आपने देखा हो ये जो होता है bustle, ये इस तरीके का अलग से पोर्शन, नॉर्मली वो यहाँ पर एक पोर्शन लगाते हैं, उसके ऊपर फिर गाउन इस तरीके से वेयर करते हैं, बड़ा एक फ्लेयर आ जाता है काइंड ऑफ थिंग ऐसा वाला, तो conspicuous bustle हो जाता है। और पाउडर्ड विग्स काइंड ऑफ थिंग, ये पहले विग चलना होता था पहनना, इज ए नॉर्मली विग्स वर यूज्ड बाय द किंग्स, later they were used by the magistrates and judges and then by the rich people। तो पहले विग पहनना एक बड़ी बात होती थी, ठीक है? तो लोग पहनते थे, बिग विग काइंड ऑफ होता, पाउडर्ड विग होता था। मतलब व्हाट ही सेज इज इट इज एनाक्रोनस टू वियर द वास्ट वेस्ट, कॉन्स्पिकुअस बसल और पाउडर्ड विग ऑफ द 18th century। यानी आप शादियों में ये सब चीजें पहनकर नहीं जा सकते, इनकॉन्ग्रुअस कहलाएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ इनकॉन्ग्रुअस इज इनकॉन्ग्रिटी, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट। ओके, देन क्रोनोलॉजिकल, यू अंडरस्टैंड क्रोनोलॉजी। तो हमने क्या बोला? क्रॉन है ना, क्रॉन का मतलब टाइम हो गया। तो क्रोनोलॉजिकल इनकरेक्ट टाइम ऑर्डर कम्स फ्रॉम द क्रोनोस, हमने पहले ही देखा था। To tell a story chronologically is to relate the events in the time order or their occurrence। कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, we say it is chronological। Chronology is the science of time, order
and the accurate dating of events. The expert in this field is chronologist. One can understand, or a list of events in this time order in which they have occurred or will occur. तो chronology वही हो गया जिसमें आप उसको इवेंट को अरेंज करते हो विद टाइम और उसको नोट डाउन करते हो. जो ये करेगा वो chronologist हो जाएगा. अब केबीसी आता था अमिताभ बच्चन का, तो वो कह रहे होते थे कि इसको समय के क्रमानुसार लगाइए, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए. पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ. तो क्रोनोलॉजी इज दैट. यू मस्ट हैव हर्ड इन द पॉलिटिकल अरेना कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, इसके समझिए कि कौन सा इवेंट पहले हुआ. तो क्रोनोलॉजिकल भी अगेन फ्रॉम द वर्ड क्रॉन से आया है. क्रॉन हमारा मतलब टाइम है, ठीक है. तो क्रॉन हमने वाला, क्रॉन से क्रॉनिक डिसीज आई, क्रॉन से क्रोनोलॉजी आई और क्रॉन से एनाक्रोनस वर्ड बना. यू कैन अंडरस्टैंड क्रॉन वर्ड कहाँ कैसे यूज हो रहा है, ठीक है. आगे चलते हैं. देन क्रोनोमीटर की बात करते हैं. यू कैन सी द वर्ड क्रोनोमीटर. आप कहोगे ये तो वॉच होती है. अग्रीड है, ये वॉच है, लेकिन कहीं ना कहीं वॉच क्या है, क्रॉन और मीटर, यानी टाइम को देखने का ही तो मीटर है. तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ओमेगा एंड ऑल, दे कॉल देयर वॉचेस क्रोनोमीटर, दे डोंट कॉल इट ए वॉच. ओके, हाई टेक जिसे होते लोग कहते हैं, तो वो अपने इसको क्रोनोमीटर बोलते हैं. क्रोनोमीटर कंबाइनिंग क्रोनोज एंड मेट्रॉन. मेट्रॉन पहले भी आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ, जो मेजरमेंट के लिए यूज होता है. वी हैव रेड अबाउट दिस अर्लियर इन वन ऑफ द सेशंस, ठीक है. इज अ हाईली एक्यूरेट टाइम पीस, स्पेशली वन यूज्ड ऑन शिप्स. नॉर्मली कहते हैं कि ये जो होती हैं वाइब्रेशन से, सब चीज़ों से चेंज नहीं होती, स्टैंडर्ड रहती हैं. क्रोनोमीटर होते हैं. Chronometry is the measurement of time. The adjective is chronometric. One can very well understand. Okay. Now, add the suffix sin. देखिए अगर आप word sin लगाओगे तो sin का मतलब क्या है, जिसका मतलब क्या है together, और फिर आपने आइस तो कर दिया टू क्रोनोस, तो यानी सिंक्रोनाइज वर्ड बना दिया. sin और क्रोन, आप देखो सिंक्रोनाइज वर्ड आ गया ना. यही तो है. सिन का मतलब होता है विद और क्रॉन का मतलब है टाइम. दैट्स व्हाट इज सेइंग. एटिमोलॉजिकली टू टाइम टुगेदर वी आर सेइंग, और द मूव हैपन और कॉज टू हैपन एट द सेम टाइम और रेट. लेकिन अब देखिए इफ यू, हाँ लिखा हुआ है, इफ यू एंड योर फ्रेंड सिंक्रोनाइज योर वॉचेस. ओके, अब तो खैर सारी के सारी सिंक्रोनाइज होती हैं सैटेलाइट से, बट जब सैटेलाइट से टाइम मैच नहीं होता तो हम अपने एडजस्ट करते थे कि यार मेरी एक सेकंड भी आगे पीछे ना हो घड़ी, तो ये सिंक्रोनाइज हो जाता है. योर फ्रेंड सिंक्रोनाइज योर वॉचेज, यू सेट देम एट द सेम टाइम. इफ यू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स, सपोज एज इन स्विमिंग और इन डांस, तो आप क्या कहते हैं सिंक में डालते हो. सिंक मतलब हैपन टुगेदर काइंड ऑफ थिंग, कि मूवमेंट, लेग मूवमेंट, ये सब मूवमेंट ये जो है सिंक्रोनाइज करना होता है. आप अपने एक्शन को किसी और एक्शन के साथ सिंक्रोनाइज करते हो, साइमल्टेनियसली काइंड ऑफ हो जाना चाहिए. ओके, यू मूव देम एट द सेम टाइम और रेट. The adjective is synchronous. The noun form of this verb synchronize is synchronization. Okay, तो इसका जो वर्ड बनाएगा synchronous is adjective हो जाएगा और synchronization जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड. तो synchronize आपके पास वर्ड आ गया. तो अगर आप असिंक्रोनाइज बोलना चाहो तो फिर क्या हो जाएगा, असिंक्रोनस क्या हो जाएगा, ए सिन क्रॉन अस. तो एसिंक्रोनस क्या होगा, दैट इज नॉट विथ टाइम. नहीं, वन कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. तो ये सिन विद आ गया, क्रॉन टाइम आ गया. होप यू अंडरस्टैंड दैट. चलिए फिर डिसीज की बात करते हैं. डिसीज के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है. पैथोलॉजिकल इज डिसीज्ड, अ पैथोलॉजिकल कंडीशन. दिस मीनिंग ऑफ द वर्ड इग्नोर्स द रूट लोगोज साइंस एंड स्टडी. अब हम इसमें ये नहीं कह सकते कि हम इसको लॉजी है तो ये स्टडी हो जाएगी. थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि पैथोलॉजिकल मतलब डिसीज्ड कंडीशन ऑफ ए पर्सन वी कंसिडर पैथोलॉजिकल होता है. पैथोलॉजी लैब्स आपने देखी हैं मार्केट के अंदर, यानी दे डिटेक्ट द डिसीज ऑफ द इन द बॉडी, तो पैथोलॉजी लैब होती है. तो पैथोलॉजिकल में ये नहीं कहेंगे कि वो स्टडी ऑफ डिसीज है, हम ये मान रहे हैं कि वो डिसीज कंडीशन है. पैथोलॉजिकल इज डिसीज्ड हो जाएगा. ओके, नाउ pathology is the science or study of disease, its nature, cause, cure, etc. pathology जो होती है. However, another meaning of the noun ignores logos. अभी हमने बात बोली, उसको logos को ignore कर देते हैं. and pathology may be any morbid or disease. कई बार बोलते हैं pathological state है तो हमने उसको study को हटाकर हमने बोल दिया कि बहुत ही ज़्यादा morbid. मैंने लिखा है an abnormal and unhealthy condition, disease or death like.
मॉर्बिड फीलिंग्स आ जाती हैं, मॉर्बिड कंडीशन होती है, तो उसको भी हम डिसीज्ड ही बोल देते हैं, फिर पैथोलॉजिकल में नहीं जाते कि वो स्टडी है. वी कैन यूज इट दिस वे. और abnormal physical conditions or conditions. ठीक है. In short, simply disease as in this case involves, यहाँ एग्जाम्पल दिया है आपको, this case involves so many kinds of pathology that several different specialists are working on it. अब आप इसको पैथोलॉजी को क्या मानोगे? नेचुरली आप डिसीजेज मानोगे इस केस में, स्टडी नहीं मान सकते. तो वी कैन यूज इट. दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से कि बिल्कुल अब लकीर का फकीर होकर ये अपना साइंस मत लगाने लगना थी, ये तो आपने पैथ बोला था, ये लॉजी होती है तो स्टडी होनी चाहिए. नहीं, इट इज़ लैंग्वेज. ये सेज यार ऐसे भी यूज हो जाता है, तो इसलिए इंग्लिश बनाइए नहीं. मैं बार बार कहता हूँ इंग्लिश समझिए. इट इज़ नॉट माई लैंग्वेज, इट इज समबडी एल्सेस लैंग्वेज. लेट्स नॉट ट्राई टू से ये क्यों होता है, ऐसा है आप समझ लीजिए. ओके. हिंदी में भी तो वो ये थोड़ी पूछते हैं कि आपको पाँव छूने को चरण स्पर्श क्यों बोलते हो, कुछ और क्यों नहीं बोलते. भाई ऐसे ही है, हर एक लैंग्वेज का अपना एक तरीका होता है. तो लेट्स गो विद दी विंड. वो फ्लेयर के साथ चलते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहा है आपको. अ पैथोलॉजिस्ट इज एन एक्सपर्ट हु एग्जामिन्स टिश्यू. पैथोलॉजिस्ट एन एक्सपर्ट हु एग्जामिन्स टिश्यू ऑफन बाय ऑटोप्सी और बायोप्सी. याद है आपको ऑटोप्सी हमने क्या बोला था? ए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ. ऑटोप्सी होती है जिसे पोस्टमार्टम भी आप लोग बोलते हैं. नेक्रोप्सी भी एक वर्ड मैंने शायद कभी आपको बताया होगा. नेक्रोप्सी भी होती है वर्ड, सेम होता है. ओके. नेक मतलब डेथ से होता है वर्ड. टू डायग्नोज. और बायोप्सी क्या होती है? एक टिश्यू ले लेते हैं ऑर्गन से. कैंसर हो जाए किसी को तो चाहे लिवर में हो या कहीं पर भी हो, तो डॉक्टर नीडल डालकर उस सेक्शन में से एक टिश्यू ले लेते हैं, फिर टिश्यू को एग्जामिन करते हैं कि वहां कंडीशन क्या है. तो एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू taken from the body to discover the presence, cause और extent of a disease. Obviously बाहर से आपको नहीं पता चल पाएगा, तो टिश्यू ही वहां से उठा लेते हैं. To diagnose disease and interpret the abnormalities in such tissues. Interpret तो आप जानते हैं, understand as having a particular meaning or significance. तो उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अच्छा अंदर ये हो रहा होगा. कई बार आप कहते हो यार आप मेरे वर्ड्स को आपने ऐसे गलत इंटरप्रेट कर लिया, यानी understand kind of thing. Disease and interpret the abnormalities in such tissue that may be caused by specific disease. Okay? तो आप ये देखते हैं कि भैया वो क्यों हुआ, तो वो बायोप्सी कर लेते हैं और ऑटोप्सी कर लेते हैं. पैथोलॉजिस्ट का काम ये होता है. अभी हमने क्या देखा है? पैथोलॉजी में हम उसको मान रहे हैं कि ये डिसीज को इंडिकेट कर रहा है और ये कहीं ना कहीं एक डिसीज कंडीशन को भी शो कर रहा है. तो ये तो स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ डिसीज हो गया, और एक डिसीज कंडीशन को भी हम मान रहे हैं, और इससे पैथोलॉजिस्ट भी निकल कर आ गया है. Now, another thing we need to understand simultaneously. Let's not get stick to one thing. क्या? Pathos occurs in some English words with the additional meaning of feeling. अब यहाँ देखिए, ये feeling से भी related होता है pathos word. देखिए, क्या? If you feel or suffer with someone, you are sympathetic. Naturally, if you see a beggar, what happens? आपके मन में उसके लिए एकदम feeling आती है, ओहो बेचारे का क्या हाल है. तो you sympathize with this. He says, if you feel or suffer with someone, you sympathize. अब देखिए यहाँ पर वर्ड अगर सिम है और पैथोस है, अगर आप देखिए सिंपैथाइज में वो क्या कहना चाह रहा है, अगर आप दिख रहा है आपको सिंपैथेटिक, व्हाट इट सेज, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड सिंपैथेटिक. तो सिम इज द रीस्पेलिंग बिफोर द लेटर पी ऑफ द ग्रीक सिन. सिन का मतलब वैसे विद होता है, लेकिन जैसे ही वो पी लेटर से आगे आ जाता है तो वो सिम बन जाता है. पी वाले लेटर के आगे आप उसे एम की तरह लिखते हैं, तो फिर सिनपैथी ना हो गया. जैसे सिंक्रोनाइज में सिन विद था ना, लेकिन यहाँ पर पी की वजह से वो एम हो जाता है, तो फिर सिंपैथी बोलते हैं. द नाउन इज सिंपैथी. द नाउन इज सिंपैथी. द वर्ब सिंपैथाइज होना चाहिए. यू शुड हैव सिंपैथी फॉर द पुअर. यू शुड हैव सिंपैथी फॉर द पुअर. तो सिंपैथी इज नाउन, बट यू शुड सिंपैथाइज विद द पुअर. तो सिंपैथाइज क्या हुआ? वर्ब हुआ. हस्बैंड्स फॉर एग्जाम्पल, सो द स्टोरी गोज, मान लीजिए ऐसा कह रहा है, may have sympathetic labor pains when their wives are about to deliver. भाई husband normally when the mother is there in the labor room, labor pains का मतलब होता है efforts done by the woman to deliver the baby होता है. मैं अपनी नाउन क्लास में बता चुका हूँ कि पेन और पेन्स में डिफरेंस होता है. पेन का मतलब लिटरल दर्द है और पेन्स का मतलब एफर्ट है. ठीक है, तभी तब आप कई बार यूज करते हैं कि ये बड़ा पेन्स टेकिंग वर्क होता है, मतलब जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. पेन्स
और टेकिंग हो जाता है, पेन्स टेकिंग एफर्ट हो जाता है, वर्क होता है। तो इंडियन टीम टुक लॉट ऑफ पेन्स टू विन दी यस्टरडेज मैच, पेन्स हो जाता है, तो यानी एफर्ट करा आपने, ये लो पेन्स हो जाता है। लेबर पेन्स भी क्या है, द एफर्ट डन बाय द वुमन टू पुश द चाइल्ड आउट। तो लेबर पेन्स वो दर्दें नहीं होती, वो एफर्ट होता है ना। व्हेन वुमन इज गोइंग थ्रू लेबर पेन्स, हस्बैंड मे आल्सो फील द सेम काइंड ऑफ situation outside when he is also nervous and unsettled kind of thing। तो यानी इसको क्या बोलोगे, husband may have sympathetic labor pains when their wives are about to deliver, ऐसा वाला वो assume कर रहा है। okay, the prefix anti, now you can understand। will recall means against, आप जानती हैं एंटी का मतलब, एंटी नेशनल वर्ड आपने बहुत सुना है रिसेंट पास्ट में, तो एंटी मतलब नेगेटिव हो जाता है, एंटी क्लाइमेक्स आपने सुना है। इफ यू एक्सपीरियंस एंटीपैथी, एंटी और पैथी मतलब क्या होता है एंटीपैथी, यानी जिसे हम कहते हैं कि सेटल्ड डिसलाइक हो जाती है। इंडिया पाकिस्तान दे हैव एंटीपैथी होती है, एंटी और पैथी है ना। पैथी तो हमने पहले ही देख लिया ना, पैथी का मतलब फीलिंग है, यू नो दिस। तो एंटीपैथी मतलब बहुत ही उल्टी वाली फीलिंग, ये एग्जैक्टली अपोजिट वाली हो गई। यहां पर पैथी थी और यहां पर आपका हाँ एंटीपैथी हो गया, यू अंडरस्टैंड दिस। That's we say to people or things you feel against them. The prefix anti you will recall means against. If you experience antipathy to people or things, you feel against them. You feel strong dislike or hostility. Hostility, I've written the word meaning feeling or showing dislike or opposition. Hostile activities होती हैं जो दूसरों को हार्म करने वाली हों, अपोज करने वाली हों। The adjective is antipathetic हो जाता है, as in an antipathetic reaction to the authority figure होता है। यानी कोई मान लीजिए अथॉरिटेटिव फिगर है जिसने, मान लीजिए चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ बोला बट आपका जो एटीट्यूड है उसके प्रति कैसा है, एंटीपैथेटिक है, यानी टोटली अगेंस्ट है काइंड ऑफ थिंग, ये एंटीपैथेटिक हो जाता है। ओके, पैथी से उल्टा वर्ड एंटीपैथी बनाया। बट यू मे हैव नो फीलिंग्स एट ऑल, ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला करा हो और आपको फर्क ही ना पड़ता हो, जस्ट इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब लैक ऑफ एंथुजियाज्म होता है, अनकंसर्न्ड होता है, वही लिस्टलेस होता है, वही अपैथी होता है, तीनों वर्ड सेम ही है। लैक ऑफ एनी इंटरेस्ट, इमोशन और रिस्पॉन्स, कंप्लीट लिस्टलेसनेस, लिस्टलेसनेस हो जाता है, यानी आप बिल्कुल लैक ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म होता है। स्पेशली व्हेन सम रिएक्शन इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, देन यू आर apathetic। As A, as you know, is a negative prefix, the noun is apathy, as in voter apathy होती है, student apathy होती है। भाई आप वोट डालने नहीं जाते, जब इलेक्शन होते हैं तो आप कहते हैं जाने दो यार, क्या करना, हमारे जाने से क्या फर्क पड़ेगा। तो ये वोटर अपैथी है, यानी यू फील नो कंसर्न। पैथी मतलब फीलिंग था और एपैथी मतलब नो फीलिंग है। तो यानी वी कैन से वी आर अपैथेटिक टू द पुअर, मीन्स वी आर अनकंसर्न्ड अबाउट देम, वी हैव नो like enthusiasm, we have no interest in them, कि हम ऐसे सोचते हैं कि भाड़ में जाएं, हमें क्या फर्क पड़ता है, काइंड ऑफ थिंग। तो दिस इज अपैथी होती है। तो वी कैन से टू द स्टूडेंट आल्सो, योर अपैथी टू योर सब्जेक्ट्स कैन हार्म यू, ऐसे भी बोल सकते हैं, अपैथी होती है। कई बार आप कैसे कहते हैं यार उसका एटीट्यूड बड़ा इंडिफरेंट था, जब मैं उससे मिलने गया बड़ा अपैथेटिक रवैया था उसका, काइंड ऑफ। वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, वी कैन यूज दिस वर्ड शोइंग द काइंड ऑफ नॉट बॉदरिंग अबाउट यू। अपैथेटिक होता है वो इंडिफरेंट होता है। इंडिफरेंट डज नॉट मीन कि जो डिफरेंट नहीं होता, काइंडली नोट दैट, ओके, कहीं गलत मत करना। इंडिफरेंट का मतलब होता है बॉदर ना करना, अपैथी करना। तो हमने बताया पैथी के आगे ए लगा देंगे। चलिए, ऑन द अदर हैंड, यू मे बी सो सेंसिटिव और परसेप्टिव। परसेप्टिव मतलब जो परसीव करते हैं, जो नहीं ऑटोमेटिकली आपको फीलिंग होने लगती है। हैविंग और शोइंग एक्यूट इंसाइट होता है, यानी आप उसको फील करते हैं। On the other hand, you may be so sensitive or perceptive that you do not only share the feelings of another, but you also identify with those feelings। अब क्या होता है कि आप दूसरे की फीलिंग को सिर्फ समझते ही नहीं हो, आप उसके साथ आइडेंटिफाई भी कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर यार मेरे साथ हुआ होता तो कैसा होता, ऐसी फीलिंग आ सकती है कई बार हमारे साथ। You also identify with those feelings, in fact experience them yourself as if momentarily you were that other person। यही मैंने आपसे कहा कि वो बेगर की जगह पर थोड़ी देर के लिए मुझे लगने लगता है कि अगर यार मैं होता तो मेरे साथ कैसा फील हो रहा होता, काइंड ऑफ थिंग। दैट्स व्हाट द केस इज। व्हाट यू हैव देन इज एम्पैथी। वी से ये जो हमारी फीलिंग है उस वक्त वो एम्पैथी होती है, एम्पैथी। यू एम्पैथाइज, यू आर एम्पैथेटिक, और यू यूज एन अल्टरनेटिव एडजेक्टिव एम्पैथिक। इट इज एम
is P spelling before the letter P or the in the word N. N का मतलब इन होता है, लेकिन P से आ गया तो फिर वो M बन गया, तो एम्पैथिक हो गया। और M और पैथी आपको पता है रिलेशनशिप, और वहां पर इन हो गया, यानी रिलेशनशिप के अंदर ही आप चले गए, काइंड ऑफ थिंग, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। यू पुट योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज, वी से लाइक दैट। तो सिंपैथी क्या है? फीलिंग और पिटी ऑफ सॉरो फॉर समवन एल्सेस फॉर्च्यून, यू कैन अंडरस्टैंड, मिसफॉर्च्यून सॉरी। Someone is pathetic who is obviously suffering, okay, such a person may arouse sympathy or pity। कि ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या पैथेटिक स्टेट होती है, पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स हो जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा सफरिंग वाला, बहुत ही बुरे वाला हो जाता है। पैथेटिक स्टेट भी बोल देते हैं, यानी तब भी अब यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अराउज सिंपैथी और पिटी in you. A pathetic story is about suffering and again is likely to arouse sadness, sorrow or pity. You say like that. Okay? तो यहाँ पर जहाँ पर वर्ड pathetic आएगा, यानी पैथी वाला आएगा, तो यानी आप उसको फील करेंगे बहुत ज्यादा डिसीज्ड वाला हो गया, पैथेटिक हो जाता है। बहुत बार हम यूज हैं, या सिचुएशन इज पैथेटिक इन दी ऑफिस राइट नाउ, ऐसा आप ऐसा बोलते हैं, कोई सुन के राजी नहीं, तो पैथेटिक हो जाता है। नो, What I want to tell you is sympathy तो अब आपने समझ ही लिया कि जब हम थोड़ी देर के लिए किसी के साथ एसोसिएट हुए। तो फिर हम देखें, यहाँ पिटी वर्ड मैंने लिखा था ऊपर, तो वो देख सकते हैं, ए फीलिंग और सॉरो एंड कंपैशन कॉज्ड बाय द सफरिंग ऑफ अदर्स। तो आपके मन में उसका जो एक कॉन्सिक्वेंस जनरेट होता है, यू फील पिटी फॉर द पर्सन, ओ काइंड ऑफ, तो दैट फीलिंग दैट कम्स टू यू इज पिटी। नाउ so empathy क्या होगा? To put yourself somebody else's shoes, that's what I was saying. And then compassion क्या होता है? Sympathetic pity and concern for the sufferings or misfortunes of others. Sympathetic pity होती है। So what we say is sympathetic pity होना चाहिए, kind of, when we say is कंपैशन हो जाता है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, शायद मैंने कभी बताया भी था। अपैथी हो जाती है, एंड देन एंटीपैथी हो जाती है, फिर टेलीपैथी हो जाती है। सभी वर्ड्स में अगर आप देखोगे तो इन सब वर्ड्स में पैथी वर्ड आया है, पैथी वर्ड आया है। सिंपैथी हमने बोला था विद है, एम्पैथी वो तो मैंने बोला था इन है। अब कंपैशन क्या होता है? कंपैशन होता है जो एम्पैथी से भी ज्यादा होता है। सी जब हम एम्पैथाइज करते हैं तो हमें ये लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ तो कैसा हुआ था, आई पुट माई सेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज, दैट इज एम्पैथी होती है। लेकिन सपोज आई वांट टू डू समथिंग फॉर द अदर पर्सन एंड देन टेक एन एक्शन फॉर द सेम, देन आई कॉल इट इज कंपैशन होता है। तो मदर टेरेसा वाज कंपैशनेट, not only empathize she did, she herself, people say that she herself क्या नाम है, worked for the cause of the poor and deceased and all those things, तो तभी उनको मदर टेरेसा बोलते हैं। लेकिन उनके मन में कंपैशन था, you know, तो वो कंपैशन इज समथिंग विच वी कॉल, कि जिसमें आप सिंपैथी एम्पैथी से भी ऊपर चले जाते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, कंपैशन हो जाता है। देन अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट हमने वाला, फिर एंटीपैथी हमने डिस्कस करा ही था लास्ट स्लाइड में, और टेलीपैथी। यू नो टेली का मतलब डिस्टेंस होता है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, टेली और पैथी है, यानी द सपोज्ड कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स बाय मींस अदर देन द नोन सेंसेस होता है। सपोज मैं आपको याद कर रहा था और अचानक से आपका मैसेज आ जाता है, अचानक से आपका फोन आ जाता है, अचानक से आप खुद ही आ जाते हो, तो मैं क्या कहता हूँ कि अरे यार ये तो टेलीपैथी हो गई, यानी माई वाइब्रेशन रीचेस देयर, ओके, तो ये टेलीपैथी हो जाती है। ये कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन ऑफ मीन्स ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई सेंसेस से हुआ, लेकिन वी कंसीडर टेलीपैथी होती है। जब टेली आ गया तो फिर टेली का मतलब डिस्टेंस है, तो फिर टेलीफोन भी बन गया, फोन का मतलब साउंड है, तो टेलीफोन फिर डिस्टेंस वाला साउंड होता है ना, तो टेलीविजन बन गया, फिर टेलीस्कोप बन गया, फिर टेलीग्राफ बन गया, यू नो दिस वर्ड, तो यानी टेलीपैथी आ गया। Now, what makes it possible for two people separated by miles of space to communicate with each other without recourse? Recourse मतलब a source of help in a difficult situation. That would say recourse होता है to messenger, टेलीफोन, टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विस। कोई ऐसी हेल्प नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा मैसेज वहां पहुंच जाता है। It can be done, say the believers in telepathy, also called mental telepathy, though they do not yet admit टू नोइंग हाउ। हालांकि वो इतना मानते नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन फिर भी मानते हैं कुछ ऐसा जरूर होता है। हाउ कैन वन पर्सन रीड द माइंड ऑफ अनदर? सिंपल, बाय बीइंग टेलीपैथिक, बट नो वन कैन एक्सप्लेन द केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑफ इट। कई लोग मिलेंगे आपको, वीडियो देखिए, यूट्यूब भरा पड़ा है कि लोग माइंड रीडिंग कर लेते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो टेलीपैथिक होता है, डिस्टेंस से वो हो जाता है। तो यानी रिलेशनशिप बना देते हैं विद डिस्टेंस।
Telepathy is built by the combining pathos. Now we can understand feeling with the prefix tele, distance, the same prefix we found in the telephone, telegraph, and telescope I was saying earlier. Now, telepathic communication occurs when people can feel each other's thoughts from a distance when they have ESP. ESP मतलब extra sensory perception. Normally sensory perception तो होती है, ठीक है ना, हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, वो तो सेंसरी परसेप्शन है. बट इफ यू हैव एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मीन्स समथिंग यूनिक काइंड ऑफ थिंग, तो फिर आप सब टेलीपैथी भी कर पाते हैं. फ्यू पीपल हैव दैट काइंड ऑफ this you know special ability with them, तो उनके पास ESP होता है. Hope you have understood. That's all we have in session 16 for you. I've tried to explain you a few words. If you just revise them and then do the exercise at the end of the session, this will be fruitful for you. Thank you for watching. God bless you.